guys, welcome back to my channel VV Vlogs. If you are new to this channel, my name is Vansh. Please subscribe to my channel and press the bell icon so that you never miss any update. "365 days, 365 vlogs, every day new vlog." So yeah, so basically in this challenge I'll be putting a new vlog every day, and today is the 21st June. I'm going to put my first vlog on 1st July. I'm planning a tour to Leh Ladakh. You will be seeing after this video. So yeah, I've already started packing. As you can see, my room is so messy right now. So I've started my packing and preparing everything and remembering everything which I have to take. So yeah, see you in my next video. See you in Leh Ladakh. Good morning guys. सुबह के बजे हैं 3:15 और हम लोग 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले थे। तब मैं मेरा ब्रेकफास्ट करूँगा और नहाने के बाद हम लोग सब निकलेंगे 4 बजे के अराउंड। हमारे बैग ले सब लेके एयरपोर्ट के लिए, और हमारी फ्लाइट 6 बजे की है, तो हमें 2 घंटे जल्दी जाना पड़ रहा है सब बोर्डिंग पास और चेकिंग बुकिंग करवाने के लिए। सो या I just completed my security and boarding check, and I have just reached gate number, and right now I'm waiting for my flight. So guys, मैं प्लेन हो रही है, सिस्टर है मेरी मॉम, तो just sit there. We reached Delhi airport right now. You can see I'm in the lounge and having my breakfast. Let's see what they offer me for my breakfast. Guys, so they have given me dosa, idli, chutney, sambar, and I don't know what is this. Guys, they also given me juice, which is guava, the Tropicana guava juice. We have reached to Ladakh, and here corona rapid test is mandatory. So you have to bring your RT-PCR report and you have to register for rapid test here. They will do your rapid test here and give you reports. So yeah.
इस रेस्टोरेंट में आज लंच करेंगे। Good afternoon. Thank you. So good morning, guys. Having tea. तो guys, at day 2 और आज हम घूमने जाएंगे लेह में। यहाँ से कितना दूर है? अच्छे इधर से 50-60 किलोमीटर। Do you miss me so much? I think back to who I was. I don't recognize those days, and I'm still thinking about you and how I miss you so much. So guys, हॉल ऑफ फेम एक वॉर मेमोरियल एंड एक वॉर म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे कि बहुत सारे वेपन्स एंड बहुत सारे मैप्स देखने मिलेगी जहाँ पे पाकिस्तान ने पहले कैप्चर किया था, फिर इंडिया ने फिर से कैप्चर किया। यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस है इंडियन सिटीज़न के लिए एंड 200 रुपीज़ फॉर फॉरेन सिटीज़न। सो हियर 100 रुपीज़ प्राइस फॉर वीडियो कैमरा, यू हैव टू पे फॉर रिकॉर्डिंग। So yeah, this is the weapon which had been captured by Indian Army while war between Pakistan and India. This was the weapon used. This is also a weapon. There are so many weapons used in war. You can see rocket launchers, guns. There was some grenades and all. I'm
ओके गाइस, जो ये 3 लाइन है, अगर वहाँ पे हम लोग खड़ी रखेंगे कार तो ये आप आगे आएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक व्हील्स है। अभी देख सकते हैं, अभी हमने हमारी कार यहाँ पे खड़ी रखी है। सी, इट्स मूविंग, देखा, इट्स मूविंग। उन्होंने गियर भी न्यूट्रल रखा है, देखो, इट्स मूविंग बाय इटसेल्फ। Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. I'm thinking about you. Do you remember last year? The way we used to touch. And are you thinking about me? Do you miss me so much? I think back to who I was. I don't recognize those days. And I'm still thinking about you. And how I miss you so much. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. I'm thinking about you. Do you remember last year? The way we used to touch. And are you thinking about me? Do you miss me so much? I think back to who I was. I don't recognize those days. And I'm still thinking about you. And how I miss you so much. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. I'm thinking about you. सो गाइस, आज डे 3 है।
हाय गाइस, ये है रेंटो स्कूल 3 स्कूल। यहाँ पे चतुर ने सुसु की था, यहाँ से वो बल्ब गिरा है और हम आए हैं यहाँ पे घूमने, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस हम लोग अभी रास्ते में खड़े हैं क्योंकि आगे एक आर्मी का ट्रक पलट गया है, इसलिए थोड़ी देर हमें यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाया नहीं दे सकता क्योंकि ट्रक आगे पलट गई है, इसलिए आर्मी वालों ने हमें बोला थोड़ी देर आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। So yeah, we are waiting for a while. After 2 hours traffic and waiting, now we are heading towards Bangkok. कॉन्ग लेक और हमारा होटल का नाम है वर्ल्ड एक्टिक कैंप। You can see the view. So I don't know what's the temperature right now here is, but
Day 4 ना Day 5. A4. गाइस तो हम लोग आ चुके हैं पैंगोंग लेक. ये लेक 13,862 फीट ऊपर है. और अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये शूटिंग पॉइंट है जहाँ पे आमिर खान ने शूट किया था. ये लेक की खासियत ये है कि आप जैसे हाइट पे जाओगे तो आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे. वीडियो में आप देख सकते हैं. ये जो अभी मैं जा रहा हूँ वो भी शूटिंग पॉइंट ही है. यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बर्ड्स, फ्लावर्स, फिशेस एंड बहुत सारे टाइप के एनिमल्स दिखेंगे आपको. मैंने मेरी वीडियो में डाला है आगे. इसका फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक है उसका आधा हिस्सा चाइना में है. उसका 40% हिस्सा जो है वो इंडिया में रहता है. और बाकी का जो 10% है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे आता है. तो यहाँ पे तो आपको वैसे फ़ोटो शूट करने में भी मज़ा आएगा. बट यहाँ पे जो टेंट का एक्सपीरियंस है आपको मैं सजेस्ट करूँगा लेना ही चाहिए क्योंकि उसका एक अलग ही मज़ा है. तो अब हम लोग नुब्रा वैली के लिए निकल चुके हैं. नुब्रा वैली पैंगोंग लेक से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है. और ये वैली जो है वो 10,000 फीट ही ऊंचा है. ले से थोड़ा नीचा है मतलब हाइट में, क्योंकि ले जो है वो 11,000 फीट में और नुब्रा वैली जो है 10,000 फीट पे. तो ये जो नुब्रा वैली है वहाँ पे भी बहुत सारी जगह घूमने जैसे इधर. हम लोग यहाँ पे रुके हैं फोटो शूट के लिए. देख सकते हैं आप सीनरी. ओके. जैसे कि दीक्षित मोनेस्ट्री जो बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है वहाँ की. फिर यहाँ पे कैमल सफारी है, सैंड ड्यून्स है और बहुत सारी चीज़ें. तो आप अगर अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो तो आपको नुब्रा वैली में बहुत मज़ा आ जाएगा. हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल द ड्यून्स जो अभी नई ही बनी है. हुंडर में है. ये नुब्रा से थोड़ा ही दूर है. मतलब नुब्रा के अंदर ही है हुंडर करके एक जगह वहाँ पे है. अभी इस होटल को बने से 1 महीना हुआ है. और यहाँ की सर्विस, यहाँ का फूड, यहाँ का रहना बहुत ही अच्छा है. आगे आप मेरी वीडियो में देखें. गाइस अभी जो ये व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको ये मेरे बालकनी का व्यू है मेरे रूम से. आप एंजॉय करें ये व्यू.
कि मैंने पहले ही बोला, खाने में इन लोगों ने कम से कम 4 से 5 टाइप के सलाद, एक सूप, स्टीम राइस, दाल तड़का, मिक्स वेजिटेबल, पालक की सब्जी और एक नॉन वेजिटेरियन आइटम भी था, चिकन बेस्ड, और लास्ट में कस्टर्ड। हाय गाइस, डे 5 है आज। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमको अनार का जूस, सीरियल्स, 3 टाइप के सलाड्स, बनाना, फिर चाय और कॉफ़ी, 2 टाइप के सैंडविचेस विद नट्स एंड 3 टाइप्स ऑफ जैम्स एंड हनी, पूरी, पोटैटो सब्जी, पोहे एंड फ्राइड राइस, एंड दैट इज़ द मशरूम। नाउ हम लोग अब निकल चुके हैं तुर्तुक विलेज के लिए। तुर्तुक विलेज हमारी होटल से कम 77 किलोमीटर्स दूर था। ये विलेज इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है, जो शेयोक नदी के किनारे आया हुआ एक गांव है। ये गांव पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था, जब 1971 के वॉर के बाद इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर दिया। ये पहले गिलगित बल्किस्तान में आता था, फिर इंडियन आर्मी ने उसको कैप्चर कर दिया और लद्दाख के रीजन में अब ये आता है। ये एक विलेज ऐसा है जहाँ से सियाचिन का ग्लेशियर तक आप जा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा विलेज है जहाँ से आप चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये सारी जगह जा सकते हैं। अभी रास्ते में एक मेमोरियल आया है। मेमोरियल सियाचिन वॉरियर्स के लिए है, और यहाँ पे एक नदी है इस साइड, वो देख सकते हैं आप उधर। वो नदी सीधा पाकिस्तान जाती है, और अभी हम लोग जा रहे हैं तुर्तुक विलेज, जो लास्ट विलेज है इंडिया का। गाइस, ये जो शेयोक नदी है वो एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। मतलब जो इंडस रिवर में से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, उसमें से एक ये शेयोक रिवर है जो पाकिस्तान में जाती है। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे बीच में एक वाटरफॉल देखने के लिए रुक रहे थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है ये जो वाटरफॉल है वो आज आगे जाके शेयोक नदी में ही मिल जाता है। और मेरे जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि ये नदी का पानी बहुत क्लीन है, आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं। तो चलो गाइस, हम लोग ये पानी पीने जा रहे हैं बिकॉज दिस इज फ्रेश वाटर। Everybody say I don't know. This is the fresh water. आप क्या? एक मिनट आ गाइस, यहाँ पे बहुत पत्थर है।
ओके आ गए हम लोग। ये पानी पी सकते हैं? जल्दी लेट हो जाएगा। ओके ओके गाइस, अभी हम लोग ये पानी पिएंगे। काफी टेस्टी पानी है। बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ही अच्छा पानी, एकदम वो मिनरल वाटर होता है वैसा पानी है ये। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं तुर्तुक विलेज। तुर्तुक विलेज एक पूरा ही मुस्लिम बेस्ड विलेज है जहाँ पे आपको रहने की, खाने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक वुडन ब्रिज कैफ़े करके है, वहाँ पे हमने हमारा लंच किया। Guys, this is apricot tree, which is very famous thing in Leh. As you can see this. लोग आ गए हैं तुर्तुक के पैलेस में। ये तुर्तुक राजा का पैलेस है जहाँ पे 100 रुपये की टिकट है विद हिस्ट्री, 50 रुपये की टिकट सिर्फ देखने के लिए। तो हमने पूरी हिस्ट्री जानने के लिए 100 रुपये खर्चे। गाइस, तो ये है तुर्तुक का पैलेस, देखिए आगे। Guys, this is mulberry tree and they are plucking mulberry. Guys, we have just plucked some mulberry which is organic and I'm just tasting it. It's really very sweet. It have a natural color.
वाह, इट्स सो टेस्टी यार। इट्स टेस्टी। गाइस आज डे 6 है। तो गाइस हम लोग जाने वाले हैं आज दीक्षित मोनेस्ट्री। दीक्षित मोनेस्ट्री एक पुरानी और सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है नुब्रा वैली में, जो हमारी होटल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो मोनेस्ट्री है वो 14th सेंचुरी पे बनाई गई थी और इसमें एक प्रेयर हॉल, एक ह्यूज ड्रम एंड बहुत सारे फियर्स गार्डियंस है। और आज हम लोग कैमल सफारी और वो आई थिंक सो वो मोटर बाइक जो होती है डेजर्ट पे चलाते हैं, वो करके हम लोग फिर ले के लिए निकलने वाले हैं। इफ़ आप लोग आए यहाँ पे तो मेरा सजेशन ये है कि आप कैमल राइड सुबह को ही करें। 9 बजे से चालू होता है 12 बजे तक और शाम को 3:30 से 7 बजे तक होता है। और मेरी राय है कि आप सुबह को ही आओ, क्योंकि सुबह को भीड़ नहीं होती है और वेदर भी ऐसा कूल होता है, देख सकते हैं आप, इसलिए आप सुबह को ही आए। ठीक है, मिलते हैं कैमल राइड में। गाइस वो देख रहे हैं आप, वो सारे सैंड ड्यून्स है। Price for one camel ride is 300 rupees per head. गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे AVA राइड करने के लिए। ये जो एक पर्सन के 1000 रुपये है,
बाद में जाने के आपको पूरी फैमिली गॉन, पूरी फैमिली गॉन, पूरी फैमिली गॉन। Guys, this is the track where the bike is being ride right now. अगर आप यहाँ पे आओ घूमने तो स्टैंडिन भाई की बाइक राइड करना मत भूलना। यहाँ पे ले जा रे। हम लोग अभी नुब्रा वैली से निकल चुके हैं ले के लिए। यहाँ पे पहले खारदुंगला, पहले नुब्रा वैली से खारदुंगला पास, वहाँ से ले। तो अभी खारदुंगला पास से पहले ऐसे बहुत सारे स्टॉल आए हैं, वहाँ पे हम लोग अभी हमारा लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे खारदुंगला पास के लिए। Guys, right now I'm trying कश्मीरी कहवा। ओके मन्ना भाई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं खारदुंगला पास। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं खारदुंगला पास, जो 17,982 फीट पे आया हुआ पास है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हैं, पर आपको यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आर्मी ने सेटअप किए हैं। गाइस वो देख रहे हैं आप, वो ले है और यहाँ से ले अब थोड़ी दूर है, ऐसा गुरमीत भैया बोल रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं थिक्से मोनेस्ट्री या फिर थिक्से गोम्पा, जो टिबेटियन स्टाइल मोनेस्ट्री है और ये जो है 19 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ ले इन लद्दाख में सिचुएटेड है। ये जो मोनेस्ट्री है बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है और ये 11,800 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, जिसमें 12 स्टोरी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे बुद्धिस्ट आर्ट के स्तूपास, स्टैचूज, तो गाइस एक टिकट 50 रुपीज की है, याद रखना। वॉल पेंटिंग्स एंड स्वॉर्ड्स है। ये जो मोनेस्ट्री है 14th दलाई लामा ने विजिट की थी 1970 में, जिसमें 15 मीटर की एक हाई स्टैचू बनवाई गई है।
अभी जो आप वॉल पेंटिंग देख रहे हैं ये 14 सेंचुरी में बनाई गई वॉल पेंटिंग्स है, यानी कि 600 साल पुरानी वॉल पेंटिंग्स है ये। अभी जो मूर्ति देख रहे हैं ये प्रोटेक्टेड टेम्पल में स्थित है। यहाँ के मॉन्क्स मानते हैं कि ये पूरी मोनेस्ट्री को या बुद्धिज़्म को बचाने के लिए ये भगवान का होना इस मंदिर में आवश्यक है। जैसे हमारे में भैरव भगवान होते हैं वैसे वो होते हैं। अभी जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये फॉर्चून बुद्धा की मूर्ति है जो 40 ईयर से पुरानी है। और अब हम लोग तारा टेम्पल में आ गए हैं। तारा टेम्पल में भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं, तो आप देखिए। Guys, today is day 7 and we are going to Leh Palace and Santi Stupa, and after that finishing we are going to visit Leh Market for some shopping with my sister and my mom. हम लोग आ चुके हैं अभी ले पैलेस। You can see behind me, it's a Leh Palace. So we are going right now there. If you wanna go, I'm down. 'Cause now that we were made for bigger things, this place keeps killing our dreams.
पैलेस देख लिया हमने और अब हम लोग जा रहे हैं शांति स्तूपा, जहाँ पे बहुत शांति मिलती है, ऐसा ये गुरमीत भैया बोल रहे हैं। देखते हैं। If you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we were made for bigger things. This place keeps killing our गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अभी ले मार्केट। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से हम लोग लद्दाख की क्राफ्ट और तिब्बतियन क्राफ्ट की कुछ चीज़ें खरीदेंगे हमारे घर वालों के लिए। तो गाइस बने रहिए वीडियो के अंत तक। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी सोईसा कैफ़े। यहाँ पे भीड़ बहुत कम है कोविड की वजह से। ये फैमिली रेस्टोरेंट अच्छा है। यहाँ पे हमने दो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस, पिज़्ज़ा वाज सो अमेजिंग, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा था ये पिज़्ज़ा, मुझे बहुत पसंद आया। आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और मैंने यहाँ पे मार्गरिटा विद चीज़ बस्ट मंगाया था, मुझे सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगा। और दूसरा वेजी सुप्रीम था, वो भी अच्छा है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी ले मार्केट में, ये शॉप में ऑर्गेनिक लद्दाख करके। ये शॉप में आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेगी, जैसे कि टी, एप्रिकॉट स्क्रब एंड एक्सेट्रा। यहाँ से आप बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं। मैं आज डे 8 है और आज हम लोग जा रहे हैं ले से अहमदाबाद। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अब हमारे घर की ओर। मतलब पहले तो एयरपोर्ट जाएंगे, फिर घर जाएंगे। तो अभी हमारी 11:10 की फ़्लाइट और अभी बज रहे हैं 9। 2 घंटे जल्दी पहुंचना पड़ता है हमें एयरपोर्ट, कोई भी हो। बस सब लोग हम जा रहे हैं, आज हमारा टूर एंड हो रहा है। बहुत कंटाला आएगा घर पे जाके, वापस रूटीन आ जाएगा हमारा।
वैसे मेरा रूटीन तो कुछ है ही नहीं, 5 बजे क्लासेस होते हैं तो अभी Tell me, babe, wanna leave this town? Say, love it if you wanna go. तो गाइस अभी हमारा चेकिंग ख़त्म हो गया और ये हमारा बोर्डिंग पास है और अब हम 10:30 बजे बोर्डिंग टाइम है तो निकलेंगे यहाँ से ले से। देख सकते हैं आप बहुत भीड़ है यहाँ पे ले में। गाइस मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद और अभी मैं यहाँ पे 1944 में खाने आया हूँ। ठीक है तो अब मैं डिनर कर लेता हूँ शांति से और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।